Okay, so let us take a quick recap now again. So today we will discuss a few topics in this our session. From the mathematics one, we will discuss mathematical logic, matrices, differentiation, and integration. Second, from the mathematics 2, we will discuss about the linear regression, commission, brokerage and discount, and index numbers and LPP. So the 8 topics, we will take a quick recap of these all chapters in this our session. Now, next, first, let us see the chapter wise weightage for the exam. Okay, for the from the mathematics 1, the first mathematical logic 8 marks, matrices 8 marks, differentiation 7 marks, application of derivatives 9 marks, then integration 7 marks, definite integrals 5 marks, application of definite integrals 4 marks, differential equation 10 marks. Then from mathematics and statistics part 2, commission brokerage discount, it will be for 6 marks. Insurance and annuity, it will be for 4 marks. Linear regression 8 marks. Time series 7 marks. Index numbers 7 marks. Linear programming 6 marks. Assignment and sequencing 4 marks. Probability distribution, it will be for 10 marks, and it is very important topic, probability distribution. Now बहुत बार क्या होता है कि मैंने जब देखा है, जब मैं पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट्स की ऐसी कंप्लेंट होती है कि सर हमें एकदम से याद नहीं आता है, हमको फॉर्म्स याद में आते नहीं है कि हम क्या करें, कैसे सॉल्व करें। तो वो सब चीजें हमें यहाँ पे आज देखनी है कि आप कैसे शॉर्ट टेक्निक से वो फॉर्म याद रख सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैथमेटिक्स पार्ट 1 की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्म आइडेंटिफाई करना। जैसे टॉपिक से डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद है डेफिनेट इंटीग्रल्स। उस चैप्टर्स में क्या है कि वहां पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्म आइडेंटिफाई करना, और उसके बाद उसका इवैल्यूएशन आता है। अगर आप फॉर्म आइडेंटिफाई उसमें नहीं कर पाते हो तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो वो सब चीजें हम यहाँ पे आज के सेशन में डिस्कस करने वाले। ना अभी हम जाएंगे कि जो जो डिलीटेड सिलेबस है हमारा, वो क्या क्या है वो सबसे पहले डिस्कस करते हैं। जो कंप्लीटली डिलीट हुआ है वो है सगळ्यात पहिलं म्हणजे मॅथमॅटिक्स अँड स्टॅटिस्टिक्स पार्ट 1 मधला जो फर्स्ट चॅप्टर आहे मॅथमॅटिकल लॉजिक, त्याच्यामधला एक्सरसाइज 1.9 आणि एक्सरसाइज 1.10 हा कम्प्लिटली डिलीट केलेला आहे. नो क्वेश्चन विल बी गोइंग टू आस्क ऑन दीज टू एक्सरसाइज. Exercise 1.9, which is without using truth table, you have to prove the logical equivalence for that. Without using truth table means in that you have to use that particular laws like associative law, distributive law, commutative law, then idempotent law, identity law. These all have De Morgan's law. These all laws you have to use, and you have to prove that LHS is equal to RHS, that is a logical equivalence. So that exercise, and last one, exercise 1.10 is of a Venn diagram. That is also a completely deleted from your syllabus. That will again no questions will be asked on that part. Next, very important, in the chapter integration, that is a chapter number 5, the first integration, in that the method of partial fractions is deleted from your syllabus. That is the integration of the form px plus q upon ax square plus bx plus c dx, that is the method of partial fractions, is deleted from your syllabus. And one more important thing, अभी सबसे पहले प्रीवियसली लास्ट ईयर तक आपको स्क्वायर रूट्स जो निकालने होते थे मैथ्स 2 में, स्पेशली स्क्वायर रूट्स निकालना रहते थे यूजिंग द लॉग बुक।
तो अभी इस साल तो आपको लॉग बुक का यूज करना अलाउ नहीं है। तो अगर स्क्वायर रूट की बात आती है, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर, इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन इट इज अ completely fine. If you are writing the square root of 36, then it is okay, you can write the square root of 36 as a 6 because square root of 16 as a 4. But what about if you want to find the square root of 8.792? Then in that case, board decided that if you keep that value as it is in the square root, still you will get the full credit for the given. ओके, सो स्क्वायर रूट निकालना कंपलसरी नहीं है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू आती है वो एज इट इज आप वैसे ही रखते हो तो भी आपको उसके फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। स्पेशली जो स्क्वायर रूट निकालने की बात आती है वो रिग्रेशन में, स्पेशली लीनियर रिग्रेशन में हम यूज करते हैं, तो वहां पे आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद जहां पे लॉगरिदमिक कैलकुलेशंस है वो वैल्यूज आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिए रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो टाइम सीरीज चैप्टर है आपका, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज, उसमें से जो ग्राफिकल मेथड है, जो लीनियर, दैट इज यू हैव टू ड्रॉ द ट्रेंड लाइन, सो वो ग्राफिकल पार्ट भी डिलीट किया है सिलेबस से, उस पे से एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। फिर उसके बाद जो अभी इस साल जो सिलेबस और उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो डिजाइन किया गया है वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी विल सी कि क्वेश्चन पेपर पैटर्न जब हम डिसाइड करते हैं तो उसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, वो हमें देखनी है कि क्वेश्चन पेपर पैटर्न में क्या क्या इसमें नए नए चेंजेस इस साल आए हैं। If you can see, I'm sharing the screen now for the question paper pattern according to the board. Uh, Now this mathematics and statistics part 1 and 2, the question paper will consist of total 80 marks question paper is there. So the total number of marks is 80. Total marks 80. So the first question A will be select and write most appropriate answers from the given alternatives for each sub question. That is, the first question is, the screen is visible. Okay, so we will discuss orally now.
I think that there is a problem regarding a screen sharing. Okay, let us discuss quickly about the question paper pattern regarding part 1 and part 2. So the first question A will be question 1A. Select and write most appropriate answers from the given alternative for each sub question. That is, the first question is of MCQ compulsory question which will carry 6 marks. Then question number 1B, state whether the following statements are true or false. That is, it will be for 3 marks, again compulsory question. Then question number 1C, fill in the blanks with most appropriate words. That is, again it will be for 3 marks. So the total, there will be a 12 marks for the first question. In the previous year, uh, the first question was is to attempt any 6 questions out of 8. Each question will carry 2 marks. It was a descriptive type questions. Now this year they replaced it by MCQs, true or false, and fill in the blanks. So this is the only change they have made this year. Then the question number 2A, attempt the following any two, then it will be for 6 marks. That is, you have to attempt the 2 questions out of 3 questions which will carry 6 marks, 3 marks for each question. Then question number 2B, attempt the any 2 questions out of 3. Each question will carry 4 marks. Then question number 3A, again attempt the following any 2 questions out of 3. It will again for each question will carry 3 marks. Then question number 3B, attempt the following any one. It will carry 4 marks. You have to attempt only one question out of 2. And the question number 3C, again attempt any one. That is, it will be for 4 marks. So out of 2 you have to attempt one, but this time this question is little bit changed. So this question is now an activity based questions, but whatever activities mentioned back end of the textbook, it will not ask. They will ask an activity questions between the regular exercises in the textbook. They will convert any question from the exercise in the activity based questions. मतलब textbook के पीछे जो activity questions है वो पूछे नहीं जाएंगे, वो एक्सरसाइज में से ही कोई एक क्वेश्चन वो एक्टिविटी क्वेश्चंस में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. सो एक्सरसाइज में से अगर आप प्रॉब्लम जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स है वो भी आप अगर रेगुलरली करते हो, रेगुलर सॉल्व करते हो, तो भी उसमें से एक तो क्वेश्चन एक्टिविटी में रहता है. एक्टिविटी मतलब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिलअप करने होते हैं. आधा प्रॉब्लम सॉल्व किया होता है, आधा आपको करना होता है. मतलब फर्स्ट स्टेप उन्होंने सॉल्व की है, सेकंड स्टेप यू हैव टू सॉल्व, थर्ड स्टेप अगेन उन्होंने दी है, फोर्थ स्टेप यू हैव टू सॉल्व, लाइक दैट. So this is an easy question. You can easily get a 4 marks in that. Same section number 2, the question 4A, select and write most appropriate answers from the given alternatives for each sub question. Again it will be for 6 marks. Then question 4B, state whether the following statements are true or false. It will again for 3 marks, compulsory question. Then question 4C, fill in the blanks. Again it will be for 3 marks, compulsory question. Then question 5A, again attempt any 2 out of 3. Each question will carry 3 marks. Question 5B, attempt the following any 2 you have to solve out of 3. Each question will carry 4 marks. Question 6A, attempt the following any 2 out of 3. Each question will carry 3 marks. Question 6B, attempt any one of the following out of 2. Each question will carry 4 marks. And question 6C, again there will be an activity question.
Okay, so in this way there is a total 80 marks question paper for your board exams, mathematics and statistics 1 and 2. It will be a combined paper. So in 3 hours, now the time is increased, 3.5 hours you have to solve the 80 marks question paper. The section 1 will be of maths 1 and section 2 will be of maths 2. Okay, I think the question paper pattern is clear to all of you. So now let us start with our topics. ओके, नाउ आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स एंड जो कुछ टेक्निक्स है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं और उसके क्विक रिकैप्स हम उसमें देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल लॉजिक से। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्वेश्चन आया है कि write down the truth values of the following statement. Let us consider this one example, that is Delhi is a capital of India और Pune is a harbor. So अगर ये मैंने एग्जाम्पल अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं यहाँ पे, तो कैसे ट्रूथ वैल्यू लिखने का भी एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, स्टेप्स रहते हैं, वो हमें फॉलो करने हैं। सपोज मैंने लिखा है दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया और पुणे इज अ हार्बर। सो सबसे पहले वॉट एवर दिस स्टेटमेंट इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट विच इज connected by a logical connective or. So first convert the given statements into two simple statements, that is in the form of P and Q. So let me consider that the statement P is Delhi is the capital of India and the statement Q is Pune is a harbor. So first you have to write a symbolic form. So what is the symbolic form? It is P or Q. Now, next step, you have to write the original truth values. Is the Delhi is the capital of India? Yes, this statement is completely true. So right here, the truth value as a true, or Pune is a harbor. No, this statement is false. Write there F. Okay, and referring to your tables of the conjunctions, disjunction. Now this statement is of disjunction, that is or. So refer the value for T or F. It is the truth value is T. तो हमें ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए ट्रूथ वैल्यूज कैसे लिखना है, देन यू हैव टू फॉलो दिस टाइप ऑफ स्टेप्स हियर। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथमेटिकल लॉजिक्स के रिगार्डिंग चैप्टर्स में अगर 8 मार्क्स का इसका वेटेज है, तो कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट, आइदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्रॉ द ट्रूथ टेबल फॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न, नहीं तो सेकेंड क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं राइट डाउन और state whether the given verify that means prove that the given statement patterns are logically equivalent. Logically equivalent means left hand side को जो statement pattern दिया है और right hand side का जो statement pattern दिया है, उससे truth values अगर सेम आते हैं, then we can say that the given statement pattern is logically equivalent. थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो आपको पूछ सकते हैं कि state whether the given statement pattern is a tautology, contradiction or contingency. तो tautology मतलब अगर लास्ट कॉलम के ट्रूथ वैल्यूज अगर सारे ट्रू आते हैं, then we can say that the given statement pattern is a tautology. अगर लास्ट कॉलम के सारे वैल्यूज अगर फॉल्स आते हैं, then we can say that the given statement pattern is contradiction. अगर लास्ट कॉलम के ट्रूथ वैल्यूज अगर कॉम्बिनेशन ऑफ टी एंड एफ ऐसे आते हैं, देन वी कैन से दैट द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज अ कॉन्टिंजेंसी। अभी ये हो गए
3 मार्क्स क्वेश्चन या 4 मार्क्स क्वेश्चन, मतलब अगर ट्रुथ टेबल का अगर आपको क्वेश्चन आता भी है तो आइदर वो 3 मार्क्स का आएगा, नहीं तो 4 मार्क्स का आएगा, डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न विच इज गिवन टू यू। ओके, अगर छोटा स्टेटमेंट पैटर्न है तो 3 मार्क्स ले आएगा, अगर बड़ा स्टेटमेंट पैटर्न है तो वो 4 मार्क्स ले आएगा। और एक 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये बहुत ही बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत सालों से ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आता है। तो सिर्फ आपको 3 स्टेटमेंट्स लिखने हैं उसमें, कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव में 3 स्टेटमेंट्स, यू विल गेट 3 मार्क्स। बट very important thing that you need to remember is converse, inverse and contrapositive of the given statement possibles only if the given statement is in the form of implication, that is अगर वो statement if then के form में अगर वो statement रहता है तो ही we can say that the converse, inverse and contrapositive is possible। मतलब जो स्टेटमेंट इफ एंड देन में रहता है उसका कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव लिखना इजी हो जाता है, मतलब उसका ही सिर्फ आप लिख सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक दिस एग्जाम्पल, सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इफ आई टेक हियर, if 2 plus 5 is equal to 10, then 4 plus 10 is equal to 20. So this statement is in the form of implication, that is if and then. Now for this statement I have to write the converse, inverse and contrapositive. So first, how to write the converse, inverse and contrapositive? It is for 3 marks. So कैसे लिखना है? These are the steps. So first, convert the given compound statements into the 2 simple statements. So what is the 2 simple statements? It is 2 plus 5 is equal to 10 and 4 plus 10 is equal to 20. So this is a first step, you have to convert it into the 2 simple statements. Then right here, converse. What is the converse says? Q implies P. Now if you observe these 3 symbols for the converse, inverse and contrapositive, every time the logical connective used is implication. So the statement will be in the form of implication only. Only the change is that for the converse, it will become Q implies P. So what is my Q? It is 4 plus 10 is equal to 20, implies P, that is 2 plus 5 is equal to 10. So the converse of a statement is if 4 plus 10 is equal to 20, then 2 plus 5 is equal to 10. Then inverse of the statement. What is the inverse says? Negation P implies the negation Q. That means if 2 plus 5 is not equal to 10, then 4 plus 10 is not equal to what? 20. Then contrapositive, it says negation Q implies negation P. Means if 4 plus 10 is not equal to 20, then 2 plus 5 is not equal to 10. So this way you can write the converse, inverse and contrapositive of the given statement. What you have to remember, the converse, inverse, contrapositive, the possible only when the statement is in the form of if then. Okay, now this is one basic example of truth table, and very important thing, you have to highlight the last column or you can box it to the last column truth value, so it will get easy to understand the paper। जो चेकिंग करने वाला होता है उसको इजी हो जाता है चेक करना, और आउट उसको आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स मिल जाते हैं। तो जहां पे प्रेजेंटेशन भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब हम ट्रुथ टेबल या जो भी कुछ हम करते हैं उसमें जरूरी है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स नाउ नेक्स्ट चैप्टर, मैट्रिसेस। सो मैट्रिसेस में हम सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कौन से टाइप के मैट्रिसेस होते हैं। फिर उसके बाद अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस है जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आता है। फिर ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस में इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस है। फिर सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। तो जो कुछ अभी हमने डिस्कस किया मैथमेटिकल लॉजिक के बारे में, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अभी हम मैट्रिसेस जब स्टार्ट करते हैं, अभी मैट्रिसेस में क्या क्या पूछने के चांसेस होते हैं, आइदर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पूछेंगे, नहीं तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पूछ सकते हैं। उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आ जाता है, 4 या 3 मार्क्स के लिए, डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन। तो
कैसे होगा वो भी हम डिस्कस करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैट्राइसिस लॉजिक में से जो एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे वो भी हमें डिस्कस करना है। तो अभी एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, एमसीक्यूज के लिए क्या करना चाहिए। इट इज नॉट अ कंपल्सरी, मतलब ऐसे कुछ कंपल्शन नहीं है कि टेक्स्ट बुक के पीछे जो आपको एमसीक्यूज दिए हैं एक्सरसाइजेस में सिर्फ उतना ही करो काफी है। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, मीन्स उतना कंपल्सरी नहीं है कि उसके पीछे ही जो दिए हैं वही पूछेंगे, नहीं। टेक्स्ट बुक के अंदर जो हाइलाइटेड पॉइंट्स टेक्स्ट बुक में दिए हैं, फॉर एग्जांपल लाइक प्रॉपर्टीज, वो जो नोट दिए रहते हैं, वो भी अगर आप प्रॉपरली स्टडी करते हो, अगर वो आप नोट या प्रॉपर्टीज पढ़ते हो प्रॉपरली, तो भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि उसमें से भी एक क्वेश्चन फ्रेम होके आ सकता है, जो प्रॉपर्टीज दिए होते हैं, जो नोट दिया होता है टेक्स्ट बुक के अंदर, जब चैप्टर्स दिया रहता है उसके अंदर कुछ नोट या प्रॉपर्टीज दिए रहते हैं, वो भी आपको स्टडी करने हैं साइमल्टेनियसली। जैसे आप टेक्स्ट बुक के पीछे एमसीक्यूज करोगे तब उसके साथ साथ आपको ये भी करना है। तो अभी मैट्राइसेस की तरफ जाते हैं। सो अभी मैट्राइसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब 3 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं उसमें ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसेस है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यू हैव टू रिमेंबर दैट in order to do the addition and subtraction of matrices, you have to be remember very carefully that if the order of matrix are same, then only the addition and subtraction is possible. अगर दोनों मैट्रिक्स से 2 मैट्रिक्स दिए हैं, 3 मैट्रिक्स दिए हैं, 4 दिए हैं, अगर सब मैट्रिसेस की ऑर्डर अगर सेम होती है तो ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल। Suppose if you see this example, if A 157895, so this matrix is of the order 3 rows 2 columns. B matrix is of the order 3 rows 2 columns. C matrix again is of the order 3 rows 2 columns. So यहाँ पे अगर आप देखोगे तो तीनों मैट्रिसेस की ऑर्डर जो है वो क्या दी है, सेम है। सो अगर मैट्रिसेस की ऑर्डर सेम है तो ही एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, ये आपको पॉइंट हमेशा याद रखना है। ओके, फिर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन जैसे मैंने बताया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के लिए ऑर्डर सेम है, लेकिन ये रूल मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस में फॉलो नहीं होता है। यू कैन मल्टीप्लाई 2 मैट्रिसेस ऑफ एनी ऑर्डर, 2 अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिसेस भी आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो उसकी भी एक टेक्निक होती है, आप पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हो कि 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आने वाला है उस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या रहेगी। तो वो कैसे देखते हैं, लेट अस सी हियर। सो यहाँ पे दिया है, if the 2 matrices A and B are said to be conformable for the multiplication if the number of columns in A is equal to number of rows in B. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैट्रिक्स आपको ए मैट्रिक्स दिया है जिसकी ऑर्डर है m इंटू एन, एंड सेकेंड मैट्रिक्स दिया है जिसकी ऑर्डर है n इंटू पी, then the product AB from the matrix of the order, it will be of order m into p. ओके, तो अब पहला मैट्रिक्स आपको दिया है तो उसकी ऑर्डर आप कोने में पेंसिल से लिख सकते हो, बी मैट्रिक्स दिया है उसकी ऑर्डर आप लिख सकते हो, और दोनों मैट्रिक्स में सिर्फ आपको कंपैरिजन करना है कि m की वैल्यू क्या है और p की वैल्यू क्या है। वो बस आप नोट डाउन करके लीजिए m और p की वैल्यू, जो कुछ आपका प्रोडक्ट करने के बाद मैट्रिक्स आने वाला है वो आपका रहेगा m इंटू पी ऑर्डर पर। ओके, सो नाउ ये हो गया अबाउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जो कुछ आपका प्रोडक्ट करने के बाद मैट्रिक्स आने वाला है, okay, now after that we will see the application of matrices. That is a very important part, application of matrices, that is the solution of systems of linear equation. So it will contain 2 parts. The first is the method of inversion and second one is the method of reduction.
तो बहुत बार ये प्रॉब्लम होती है जब इनवर्स निकालने की बात आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती क्या करते हैं, कभी कभार एक क्वेश्चन दिया रहता है, एक आपको मैट्रिक्स दिया है ए एंड द क्वेश्चन इज गिवन टू यू दैट रिड्यूस द गिवन मैट्रिक्स टू द I3 यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशंस। सो रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्वेश्चन ठीक से आपको रीड करना है। क्या दिया है, रिड्यूस द गिवन मैट्रिक्स टू द I3 यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। वहां पे आपको इनवर्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऐसा वर्ड आपको मेंशन नहीं किया है वहां पे। तो जब आपको इनवर्स ये वर्ड मेंशन नहीं किया है, देन यू नो नीड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी कुछ आप इनवर्स निकालने के लिए जो भी कुछ रो ट्रांसफॉर्मेशन आप करते हो, दैट इज R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 R3 एंड सो ऑन, जो भी कुछ करना है सिर्फ जो दिया हुआ मैट्रिक्स है उसके ऊपर सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन करके आपको आइडेंटिटी फॉर्म करना है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में आप क्या करते हो कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए जो कुछ ए मैट्रिक्स पे आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो, एट द सेम टाइम यू आर अप्लाइंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आल्सो ऑन द राइट हैंड साइड। तो ये हो गई इनवर्स निकालने की टेक्निक। सो इनवर्स निकालने के दो तरीके होते हैं, एक होता है एडजॉइंट मेथड, सेकंड है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। 99% एग्जाम में रो ट्रांसफॉर्मेशन ही पूछते हैं। मतलब क्वेश्चन आने के चांसेस कैसे होते हैं, अगर एडजॉइंट का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है 4 मार्क्स का मैट्रिक्स का, तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पूछेगी। अगर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है तो एडजॉइंट का क्वेश्चन नहीं आता। तो दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन एग्जाम में क्या आ सकता है, अपियर हो सकता है। यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, अभी solution of systems of linear equations, so it contains two parts, that is a method of inversion and the method of reduction. अभी मेथड ऑफ इन्वर्जन एंड मेथड ऑफ रिडक्शन में क्या डिफरेंस है, यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन। सो द मेथड ऑफ इन्वर्जन में जो भी कुछ आपको x और y के और z के वैल्यू, x और y जब आएंगे जब मैट्रिक्स इज ऑफ द ऑर्डर 2 rows 2 columns, and if you want to find the three values, that is x y z, then the matrix will be of the order 3 rows 3 columns. सो फर्स्ट आप क्या करते हो, उस जो कुछ सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस आपको दिए रहते हैं उसको आप सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। तो मेथड ऑफ इन्वर्जन में योर स्टैंडर्ड फॉर्म विल बी x is equal to a inverse into b. That means in the method of inversion, in order to find the values of x, y or z, it is compulsory that you have to find the inverse of a matrix. Now for this you have a choice, either you can use adjoint method or you can use a elementary transformation method. The choice is totally yours, but for the method of inversion the inverse of matrix is compulsory. Then whatever will be your inverse, then you will multiply this matrix into b matrix and then you will get the values of x, y and z. In the method of reduction, you no need to find the inverse in the method of reduction. Either you have to form the given matrix into the upper triangular matrix or into the lower triangular matrix. Either upper triangular or lower triangular. So if you find, then अपर ट्रायंगुलर फॉर्म किया या लोअर ट्रायंगुलर में अगर आप फॉर्म करते हो तो आपको वापस उसको क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म में लिख के लेना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मींस नीचे के 3 जीरोस करने हैं फर्स्ट, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ z, देन y एंड देन x। अगर आप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म करते हो देन यू विल फर्स्ट गेट द वैल्यू ऑफ x, देन y एंड देन z। So just remember this difference in the method of inversion and method of reduction. So I will repeat in short. In the method of inversion, the finding of inverse of matrix is must. Okay, then only you will get the values of x, y, z. In the method of reduction, you have to form either upper triangular or your lower triangular, then you will get the values of what, x, y or z. Okay, so this is all about the topic matrices. So just please be prepared properly. The first lesson, that is the mathematical logic,
This is for 8 marks with option, and for the matrices it is again for 8 marks. So just be careful, these two topics are scoring topics. You can get out marks in mathematical logic and matrices. Now from the chapter number 3, little bit tricky, and we cannot say the difficult तो हम नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं. दैट इज फ्रॉम द टॉपिक डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएशन में क्या प्रॉब्लम होती है? 11 का डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं होता है. 12 का जो डिफरेंशिएशन है उसमें डेप्थ लेवल बढ़ जाती है. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको ऑप्शन में डाल देते हैं, लेकिन ऑप्शन में डालना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएशन आएगा तो इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन आएगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो 10 मार्क्स का वेटेज है वो आएगा, क्योंकि द डिफरेंशियल इक्वेशन is a combination of differentiation as well as integration. So let us take a quick recap of the topic differentiation. So what is mean by a differentiation? So let us see this. First we will see the what is mean by rate of change. So rate of change says the best example to explain the differentiation can be used to the model the relationship between the predators and prey. ओके, सो एकदम सोपं एक्झाम्पल आपण घेऊया. जसं मी म्हणतो की एखाद्या पर्टिक्युलर जंगलामध्ये, जसं मी म्हटलं टायगर आणि डिअर हे 2 ॲनिमल्स आपण कन्सिडर करूया. आणि ऍज पर द रूल ऑफ नेचर टायगर हा जो आहे तो डिअरवर डिपेंडंट आहे आणि जो डिअर आहे तो इंडिपेंडंट आहे. So differentiation says the relationship between dependent and independent variable. So जर आपण असं म्हटलं की 200 डिअर्स आहेत आणि फॉर एक्झाम्पल असं म्हणूया 10 टायगर्स आहेत, तर फॉर एक्झाम्पल जर 10 टायगर्सनी जर 2 दिवसात सगळ्याच्या सगळ्या 200 डिअर्सना खाऊन टाकलं तर काय होणार आहे? पुढच्या काही दिवसांसाठी टायगर्सना काहीच खायला मिळणार नाही. म्हणजेच काय की टायगर जो हा आहे तो डिअर वर कम्प्लिटली डिपेंडंट आहे. सो लेट अस कन्सिडर दिस एक्झाम्पल. As the predator increases, then the prey decreases as more get eaten. But then the predators will have less to eat and start to die out, which allows more prey to survive. So differentiation says the change in the independent variable with respect to the change in the dependent variable is called the differentiation. There are many applications which can be used in the real life examples using the differentiation in the medical, in the medicine for the modeling cancer growth or the spread of diseases and so on. So अभी differentiation में क्या होता है, कौन से कब डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं? तो डिफरेंशिएशन करना तभी पॉसिबल है, डिफरेंशिएशन तभी हम कर सकते हैं जिस टर्म में एक्स है. डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव उसी टर्म का पॉसिबल होता है जिस टर्म में एक्स होता है. जहां पे आपको एक्स नहीं दिखेगा उसका डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो, कंप्लीटली जीरो. ओके, and the derivative, or we can say the function, is always denoted by f of x or y. If the function is denoted by y, then the derivative is represented as dy by dx. If the function is represented in the form of f of x, then the derivative is represented by f dash of x respectively. Okay, so you have to remember these some standard derivatives. That is, the derivative of x is 1, the derivative of constant k is 0, x raised to n. The derivative of x raised to n is n into x raised to n minus 1. The derivative of log x is 1 upon x. 1 upon x का derivative होता है minus 1 upon x square. Root x का derivative होता है 1 upon 2 root x. E raised to x का derivative e raised to x as it is. A raised to x का derivative होता है a raised to x log a. ओके, सो हमेशा एक बात याद रखनी है, डिफरेंशिएशन उसी टर्म का पॉसिबल होगा जिस टर्म में आपके साथ x एसोसिएटेड, जिस टर्म में x है उसका डेरिवेटिव आएगा. So there are few rules of differentiation you need to remember always. That is a product rule, quotient rule, and UVW rule.
So the product rule says u into derivative of v plus v into derivative of u. Quotient rule says v into derivative of u minus u into derivative of v divided by v square. So now in the 12th standard, there are few differentiation, that is a logarithmic differentiation, implicit derivative and parametric differentiation. So जनरली स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम होता है कि कौन सा फंक्शन लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन का है, कौन सा इम्प्लिसिट का है, कौन सा पैरामेट्रिक का है, ये आपको समझ में नहीं आता और वहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है कि डिफरेंशिएट कैसे करें, चेन रूल कब लगाना है, ये जनरली प्रॉब्लम हो जाता है। तो चेन रूल तभी लगाते हैं जब किसी फंक्शन में x की जगह पे कोई और टर्म अगर रिप्लेस होता है। अगर आप ये स्टैंडर्ड फंक्शंस देखते हो डेरिवेटिव्स के, तो यहाँ पे देखो आप, इफ यू ऑब्जर्व दिस इज x, दिस इज x रेज टू n, दिस इज log x, दिस इज 1 अपॉन x, दिस इज रूट x। सारे यहाँ पे स्टैंडर्ड फंक्शंस में x मेंशन किया है। लेकिन अगर x की जगह पे किसी और टर्म की रिप्लेसमेंट हो जाती है, मतलब फॉर एग्जांपल इफ वी से e रेज टू x की जगह पे वो टर्म आ गई e रेज टू 2x, तो x की जगह पे रिप्लेस हुआ टर्म 2x, तो एट दैट टाइम वी हैव टू अप्लाई द चेन रूल। मतलब x की जगह पे कोई और टर्म रिप्लेस हो जाती है जो एसोसिएटेड विद x है, तो वहां पे हमें लगाना है चेन रूल। तो लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन मतलब क्या, जब फंक्शन f ऑफ x रेज टू g ऑफ x के फॉर्म में रहता है उसको हम क्या कहते हैं, लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। अभी लॉगरिदमिक रेज टू द फंक्शन, इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेज टू, दैट इज y इज इक्वल टू x रेज टू x, y इज इक्वल टू x रेज टू 2x, y इज इक्वल टू log x raised to 3x. Now these type of functions are comes under the logarithmic differentiation. Then next, derivative of implicit function. If you observe the properly, if you solve the basic differentiation, or if you solve the problems, then you will see that the every function, it is represented in the form of y is equal to. Now derivative का हर एक फंक्शन y is equal to के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हो, फिर उसका dy by dx निकालते हो। But what about if it is the not into the form of y is equal to, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी फंक्शन है और राइट हैंड साइड में भी फंक्शन है, बीच में साइन है इज इक्वल टू। तो जब फंक्शन y इज इक्वल टू के फॉर्म में दिया नहीं है, फिर भी मुझे उसका क्या निकालना है, dy by dx, ऐसे टाइप के फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। तो अगर आप इम्प्लिसिट फंक्शंस को देखते हो, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको फंक्शन दिखता है, राइट हैंड साइड में भी फंक्शन दिखता है, क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन में वो प्रॉब्लम y इज इक्वल टू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हुआ रहेगा। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे, और वी कैन से दिस इज अ ट्रिक टू रिमेम्बर द इम्प्लिसिट फंक्शन। कि इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे रिमेम्बर करते हैं, कि जो फंक्शन y इज इक्वल टू के फॉर्म में आपको नहीं दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में भी फंक्शन दिख रहा है, राइट हैंड साइड में भी फंक्शन दिख रहा है, वो हो गया आपका इम्प्लिसिट फंक्शन। एंड with the help of the proper differentiation rules, you can find the derivative of implicit function. Then next is a parametric function, that is if x and y are expressed as a functions with the same variable t, कभी कभार t आता है, कभी कभार m आता है, कभी कभार n आता है, कुछ थर्ड पैरामीटर के साथ जब हमें डिफरेंशिएट करना होता है, तो वो कहते हैं हम पैरामेट्रिक फंक्शन। So where t is called the parameter, and how to find the dy by dx, first find dy by dt, that is the derivative of function y with respect to t। जब भी हम डेरिवेटिव निकालते हैं वो हम कैसे निकालते हैं, द डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y with respect to x। तो वैसे ही आपको सेम करना है, द डेरिवेटिव of a function with respect to what, t, at the same time you will get the dy by dx। Okay, so now after that we can see, let us see the integration. Now if we see the integration part is totally related with the differentiation। अगर differentiation आएगा तो integration आएगा, अगर integration आएगा तो डेफिनेट इंटीग्रल्स आएगा, और फिर उसके बाद वो अगर आता है तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस भी आता है।
तो इंटीग्रेशन इज exactly the reverse process of the differentiation, exactly reverse. जैसे अगर सिंपल एग्जांपल अगर हमें लेना है तो इफ आई से द डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, the derivative of log x is 1 upon x, these are the standard derivatives. वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है वैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 जो होता है वो x, जैसे log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, वैसे 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log इन मॉड x। जैसे डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n कहते हैं n इंटू x रेज टू n माइनस 1, वैसे इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n कहता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। डेरिवेटिव में माइनस था, यहाँ पे क्या हुआ है प्लस, एग्जैक्टली द रिवर्स प्रोसेस। So the operation which is an inverse process of differentiation is called what? Integration. Okay, so that's why integral is also called as antiderivative. So most of the time differentiation and integration के जो problems होते हैं वो either आपको lengthy questions that is a 4 marks question और 3 marks के लिए पूछे जाएंगे, या ये क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब वहां पे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स उस प्रॉब्लम को सॉल्व तो करते हैं लेकिन सिंप्लीफाई नहीं करते। सो फॉर द एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, if it is asked on differentiation or integration, it is important to simplify that problem up to the last step. सिर्फ इंटीग्रेशन निकाल के छोड़ना नहीं है या सिर्फ डेरिवेटिव निकाल के नहीं छोड़ना है, सबसे पॉसिबल वे में सबसे लास्ट तक सिंप्लीफिकेशन करना उतना ही जरूरी होता है एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड है। अगर आप सिंप्लीफाई नहीं करते हो देन यू विल नॉट गेट अ प्रॉपर राइट आंसर, क्योंकि जो आंसर एक्सपेक्ट किया होता है एग्जामिनर ने वो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, दैट इज सिंप्लीफाइड फॉर्म में वो आंसर एक्सपेक्ट किया होता है। अगर आप सिंप्लीफाई नहीं करते हो देन यू विल गेट अ 0 मार्क्स फॉर दैट। सो ट्राई टू सिंप्लीफाई एज मच एज पॉसिबल फॉर द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन व्हिच विल आस्क्ड इन द एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, now if you know this some standard integrals x raised to n, the integration of x raised to n is x raised to n plus 1 upon n plus 1, the integration of 1 dx is x, the integration of 1 upon x is log in mod x, integration of a raised to x is a raised to x upon log a, integration of e raised to x is e raised to x as it is, and so on. So these are some standard integrations which we have to use in this chapter, and where c is called the constant of integration, it is very important. अभी ये c is a constant of integration कहाँ से आप लगाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद जिस स्टेप में आपने इंटीग्रेशन अप्लाई किया, जहां पे आपने इंटीग्रेशन उसका लिखा, उस स्टेप से लास्ट स्टेप तक जहां तक आप सिंप्लीफाई करते हो उसके हर एक स्टेप में आपको हर एक स्टेप को प्लस सी लगाना है। मतलब इंटीग्रेशन जहां पे अप्लाई किया वहां से सिंप्लीफिकेशन तक जितने भी स्टेप्स आएंगे उस हर एक स्टेप को आपको आगे प्लस सी लगाना जरूरी है। ओके, सो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंटीग्रेशन में स्टूडेंट्स को आती है, दैट इज फॉर्म आइडेंटिफाई करना। फॉर्म आइडेंटिफाई करना आता ही नहीं है तो वो प्रॉब्लम ऑप्शन को डाल देते हैं, चलो यार नहीं आता है प्रॉब्लम, अभी क्या करेंगे, फॉर्म ही आइडेंटिफाई करना नहीं आता है, तो इन दैट केस दे विल लूज देयर मार्क्स। सो फॉर्म कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है और उसका एक सिंपल वे में इवैल्यूएशन प्रोसेस देने की मैंने कोशिश की है। सो सपोज ये पहला टाइप है इंटीग्रेशन a e raised to x plus b upon c e raised to x plus d dx, where a b c d belongs to what set of real numbers. now what is, यहाँ से शुरुआत होती है कि रियल नंबर्स का सेट क्या होता है। तो रियल नंबर्स का सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, सारे टाइप के नंबर्स, इंटीजर्स जो आते हैं उसको हम कहते हैं रियल नंबर्स। सो ये जो टाइप है इंटीग्रेशन a e raised to x plus b upon c e raised to x plus t dx,
तो उसकी इवेल्युएशन प्रोसेस क्या है, एक सिंपल 3 स्टेप्स में उसका मैंने इवेल्युएशन लिखा है। क्या दिया है, स्टेप 1 इज न्यूमरेटर इज इक्वल टू a into the derivative of denominator plus b into d by dx of the denominator where a and b are constants. So a into denominator plus b into derivative of denominator. So this is two different things. A into denominator. What is my denominator? C e raised to x plus d. So after that, you have to equate the like terms from the both sides, as well as from the left hand side and as well as from the right hand side. After comparing, you will get the values of a and b, and the next step is to evaluate the integration. So in the case of integration, जो न्यूमरेटर में था, क्या था, न्यूमरेटर इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा है, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। बस आपको यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में डालना है, डिनोमिनेटर जस्ट कीप इट एज इट इज। यहाँ पे न्यूमरेटर में मिडल साइन प्लस है, जस्ट सेपरेट करो और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन फाइंड आउट करो। So this is 3 just steps to evaluate the problem of the type a e raised to x plus b upon c e raised to x plus d. Now उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, जो 4 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यहाँ पे मैंने दिए हैं, उसके बेस्ड प्रॉब्लम्स आइदर 3 मार्क्स ले आ सकते हैं, नहीं तो 4 मार्क्स ले आ सकते हैं। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यहाँ पे क्या दिए हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a log in mod x minus a upon x plus a plus c. Then integration 1 upon a square minus x square dx is equal to 1 upon 2a log in mod a plus x upon a minus x plus c. अभी ये दोनों फॉर्म कब हमें यूज करने हैं, अगर प्रॉब्लम आपको आता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन ax square plus bx plus c. You have to use these two standard results only when if the problem is in the form of integration 1 upon ax square plus bx plus c. So there are two simple steps to evaluate this problem. First, what you have to do, take the coefficient of x square outside. मतलब सबसे पहले क्या करो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है उसको बाहर निकालो। कोएफिशिएंट को बाहर निकालना है, कॉमन लेना है, इसका मतलब आप उस टर्म को जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उस जो टर्म है उसको आप उस पर्टिकुलर a से क्या कर रहे हो, डिवाइड कर। फिर उसके बाद क्या करना है, एकदम सिंपल स्टेप, x का कोएफिशिएंट ले लो, फिर x के कोएफिशिएंट का क्या करो, हाफ करो। x के कोएफिशिएंट का हाफ करने के बाद, फॉर एग्जांपल x का कोएफिशिएंट है 2, तो उसका हाफ करो, हाफ करने के बाद क्या आएगा, 1। फिर जो हाफ किया है उसका स्क्वायर करो, मींस जो x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ करो, फिर उसका स्क्वायर करो, जो स्क्वायर की हुई वैल्यू आएगी वो उस फॉर्म में मुझे क्या करनी है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करनी है, जैसे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में यूज करते हैं। तो जब आप इवेल्युएट करोगे, जो ये प्रोसेस और ये स्टेप्स आप फॉलो करोगे, तो तब आपका फॉर्म ये पहले 2 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में से एनी वन ऑफ द फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अगर प्रॉब्लम 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में दिया है, जो स्टेप्स मैंने अभी बताए वो फॉलो करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम रहेगा ये पहले 2 में से कोई एक फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। फिर यू हैव टू अप्लाई द इंटीग्रेशन एंड यू हैव टू कन्वर्ट द प्रॉब्लम इनटू द फॉर्म ऑफ राइट हैंड साइड, दैट इज 1 अपॉन 2a log mod in x minus a upon x plus a plus c, like that. एंड ये जो थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म दिए है वो तभी आएंगे जब आपका प्रॉब्लम इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में आएगा। इसके लिए भी सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बाहर निकालना है, फिर x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ, फिर उसका स्क्वायर, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। वो करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम रहेगा वो थर्ड फॉर्म नहीं तो फोर्थ फॉर्म एक में से कन्वर्ट हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द साइंस विच आर मेंशन्ड इन द डिनोमिनेटर। यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लेकिन it is not a compulsory that every time the middle sign will be plus. It can be plus or it can be minus. It will vary.
और जैसे वो साइन वेरी होते हैं अकॉर्डिंग टू दैट आपका ये फॉर्म चेंज हो जाता है, आइदर थर्ड फॉर्म में आएगा नहीं तो फोर्थ फॉर्म में आएगा. Similarly, the same will be follow for the first form also, first two forms also. So you have to remember these points also कि ऐसे problems में ये दो forms में से either convert हो सकता है science के according. Okay? फिर उसके बाद है integration of the form px plus q upon under root ax square plus bx plus c. अभी ये forms टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, लेकिन इसके जो प्रॉब्लम्स है वो एक्सरसाइज में नहीं दिए. फिर भी वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. अगर एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं दिए हैं और इनकेस अगर क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे इवेलुएट करते हैं. तो अगेन देयर आर ओनली 3 steps to evaluate the problem. Numerator is equal to a into derivative of denominator plus b. Then after that equate the values of a and b by equating the coefficients from both the sides, and step 3 apply the integration. ओके. सो इंटीग्रेशन लगाने के लिए आपको इंटीग्रेशन रटना बहुत जरूरी है, रट्टा मारना बहुत जरूरी है. अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन नहीं पता है देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग. सो दिस इज अ बेसिक रूल. ओके. So you have to learn all the integrations and derivatives of the function in order to solve these type of problems. Now next उसमें है integration by parts. That is, it is very important. Integration it is also called as UV rule. जैसे differentiation में UV rule होता है, वैसे integration में भी UV rule होता है. क्या होता है differentiation में जो UV rule है उसमें आप by default consider करते हो कि फर्स्ट टर्म मेरी U है, सेकेंड टर्म V है. लेकिन इंटीग्रेशन के UV रूल में ऐसे नहीं होता. You have to decide which term will be your U and which term will be your V according to the sequence which is given on the screen. Logarithmic, algebraic and exponential. So if the function is given as x into log x, okay, so अगर आपको इंटीग्रेशन दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x into log x, so first you cannot directly apply the integration by UV rule. First you have to confirm that which term is going to be your term U and which term will be your V. So according to the sequence, the first term will be a logarithmic, then algebraic and then exponential. So problem दिया था in the form of x into log x, लेकिन मुझे सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, log x लेना पड़ेगा, क्योंकि सीक्वेंस में सबसे पहले क्या आता है log x, then algebraic that is x. So after applying this sequence your function will become log x into x. That means the log x will be your term u and the v term will be your x. Then you have to apply the UV rule of integration, which says u into integration v dx minus in integration the derivative of function u into integration of function v dx dx. So these all types which I have explained now, these all questions will become for 3 to 4 marks. So please remember, this question will not going to ask for 1 mark question. 1 mark question सिर्फ MCQs fill in the blanks है true or false में. 2 marks का question तो है ही नहीं, directly 3 और 4 marks के questions है. So ये सारे questions जो forms अभी मैंने explain किए वो either 3 marks question रहेंगे नहीं तो 4 marks question रहेंगे. और जो basic integration के evaluation problems है that will be asked in a MCQ, or they can be asked as a true or false, or they can be asked as a fill in the blank. So remember this thing, for the MCQs or for the fill in the blanks, simplification is play a vital role. Okay, simplification बहुत ज्यादा जरूरी है, वापस एक बार कह रहा हूँ. So please remember these things. Now this is all about the important topics related with the mathematics and statistics part 1 and okay. Now let us start with the mathematics and statistics part 2. Okay, so now let us start with the mathematics and statistics part 2. The chapter number 1 is a commission, brokerage and discount. So now यहाँ पे आपको बेसिक चीजें याद रखना बहुत जरूरी है.
क्योंकि इस टाइप के चैप्टर्स में ऐसे पर्टिकुलर फॉर्मूलेज नहीं रहते जैसे मैथ्स 1 में रहते। मैथ्स 1 में कैसा होता है, स्टैंडर्ड पैटर्न रहता है, लाइक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, इम्प्लिसिट, वो एक पैटर्न फिक्स्ड है और उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉब्लम सॉल्व करते रहना है और आपको आंसर डेफिनेटली उसमें मिल जाता है। लेकिन मैथ्स 2 में वैसा नहीं होता। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 में जो आपको प्रॉब्लम्स आएंगे वो दिखने में सेम होते हैं, लेकिन इसके फॉर एग्जाम्पल मैथ्स 2 में आपको एक प्रॉब्लम दिया है तो आपको निकालना एक ही चीज है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द डेटा विच इज गिवन टू यू, अकॉर्डिंग टू दैट द फॉर्मूला विल चेंज इन मैथ्स एंड मैथ्स पार्ट 2। ओके, इन द मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 में जैसे डेटा आपको मेंशन किया रहता है उस हिसाब से आपको फॉर्मूला चेंज करना पड़ता है। लेकिन M1 में ऐसा नहीं होता है। M1 के आपके स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स के फंक्शन है वही आपको अप्लाई करने रहते हैं, इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फंक्शन से वही आपको अप्लाई करने होते हैं, लेकिन मैथ्स 2 में वैसा नहीं है। सो लेट अस सी द कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट फॉर द मैथ्स 2। एमसीक्यूज में सबसे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि read each and every sentence of the textbook from the maths 2. Then only you will get out of out marks in the MCQs for the maths 2. Okay, so the commission is a charge paid to an agent for doing the work on behalf of some other person called a principal. Okay, so जब कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट की बात आती है, जब कमीशन कैलकुलेट करने की बात आती है, देन यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग वेरी क्लियरली, दैट द कमीशन इज ऑलवेज paid on the total sales made by that person. Remember this word, the total sales. कमीशन हमेशा टोटल सेल्स पे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, किसी पर्टिकुलर अमाउंट पे नहीं कैलकुलेट करते, टोटल सेल्स, उस पर्सन ने टोटल सेल्स कितना किया है उस हिसाब से क्या किया जाता है, टोटल सेल्स और कमीशन कैलकुलेट किया जाता है। ओके, then broker, what is mean by broker? A broker is an agent who brings buyer and seller for the purpose of purchase or sale. This commission is called a brokerage. Trade discount. Okay, so ये हो गया about the commission and brokerage. Now the important part in this, the trade discount. अभी ये ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, ये लिस्ट प्राइस क्या होता है, ये हम एक क्विक एग्जांपल में हम देखते हैं इस सेशन में। अभी ट्रेड डिस्काउंट, फॉर एग्जांपल आप जब मार्केट में जाते हो, मार्केट में आपको कुछ बुक्स परचेस करने, तो एक बुक की जो प्राइस है वो है 20 रुपीज एंड यू हैव टू परचेस 20 बुक्स एट अ टाइम। ओके, सो टोटल प्राइस कितनी हो गई, 400। ओके, अभी आप होलसेलर के पास जाते हो, आपने बोला है मुझे 20 बुक्स चाहिए, 400 रुपीज टोटल हो गए, तो जो होलसेलर है वो क्या बोल रहा है की बाबा तू एकदम मला 400 रुपये देतोय, तू एकदम 20 बुक्स परचेस करतोय, तर मी तुला ह्याच्यावर काही डिस्काउंट देतो। मग आता जो हा डिस्काउंट दिलेला असतो त्याला म्हणतात ट्रेड डिस्काउंट। म्हणजे ट्रेड डिस्काउंट इज ऑलवेज अलाउड ऑन द कॅटलॉग प्राइस और द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। आता लिस्ट प्राइस किंवा कॅटलॉग प्राइस म्हणजे काय, लिस्ट प्राइस किंवा कॅटलॉग प्राइस म्हणजे ज्या वेळेला एखादं प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चर केलं जातं त्यावेळेला जी प्राइस असाइन केली असते, ज्याला आपण MRP असं म्हणतो, त्या प्राइसला म्हणायचं लिस्ट प्राइस। म्हणजे ज्या वेळेला एखादं प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चर होतं त्यावेळेला कंपनीने जी प्राइस असाइन केलेली असते त्याला म्हणायचं लिस्ट प्राइस। आणि ट्रेड डिस्काउंट जो असतो तो नेहमी कशावर कॅल्क्युलेट केला जातो, लिस्ट प्राइस वर हा कॅल्क्युलेट केला जातो। आता ट्रेड डिस्काउंट त्यांनी दिलं, फॉर एक्झाम्पल 30 रुपीजचा ट्रेड डिस्काउंट दिलेला आहे आणि आता तुम्हाला त्यांना पे करायचे आहे 370 रुपीज। तर तुमच्याकडे जर रेडी कॅश असेल तर ती रेडी कॅश मी त्याला म्हणणार की बाबा हा मी तुला आता रेडी कॅश देतो 370 रुपये, तर तो काय म्हणेल, जर बाबा तुम्ही रेडी कॅश देत आहात तर मी तुम्हाला 20 रुपये अजून डिस्काउंट देतो। सो हा जो डिस्काउंट आहे त्याला म्हणतात कॅश डिस्काउंट। Okay, so the cash discount is allowed in the consideration of ready cash payment or the payment before due date. Okay, so you have to remember this note very clearly, that the buyer may be allowed both these discount. In such cases the trade discount is first calculated on the list price,
Then the cash discount is calculated on the net price obtained after the deduction of trade discount from the list price. So these ये जो पॉइंट्स मैंने अभी यहाँ पे दिए हैं वो सारे एमसीक्यूज के लिए पूछे जा सकते हैं कि कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस बचती है उसको हम इनवॉइस प्राइस कहते हैं, और जो इनवॉइस प्राइस मतलब 370 रुपीज उसने एमआरपी पे दैट इज 400 प्राइस पे मुझे 30 रुपीज डिस्काउंट दिया, वो था ट्रेड डिस्काउंट। तो 30 रुपीज माइनस करने के बाद जो प्राइस बची वो कितनी थी, 370 रुपीज। अभी ये जो 370 है उसको हम इनवॉइस प्राइस कहते हैं, और जो कैश डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा इनवॉइस प्राइस पे, उसने 20 रुपीज का और डिस्काउंट दिया तो हो गए 350 रुपीज। अभी ये जो 350 रुपीज है दैट इज कॉल्ड एज नेट प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट दैट वी आर गोइंग टू सी। ओके, फिर उसके बाद उसमें बैंकर्स डिस्काउंट है, then bankers gain, then what is mean by legal due date, what is mean by nominal due date, that all these terms you need to study very carefully while solving the problems based on the commission, brokerage and discount. Okay, now let us see the insurance and annuity. अभी इंश्योरेंस एंड एन्युटी क्या है? द इंश्योरेंस इज अ वे ऑफ द मैनेजिंग रिस्क इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर लाइफ, प्रॉपर्टी, व्हीकल एंड अदर फाइनेंशियल एसेट against the possible loss or damage due to the contingencies like food, flood, burglary, fire, etc. अभी इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो पूछा जा सकता है वो ऐसा होता है कि all types of insurances covers, मतलब एक एमसीक्यू ऐसा है कि लाइफ इंश्योरेंस छोड़ के जो भी कुछ बाकी के इंश्योरेंस रहते हैं वो सारे जनरल इंश्योरेंस में कैटेगराइज किए जाते हैं। ओके, सो लाइफ इंश्योरेंस छोड़ के जो बाकी सारे इंश्योरेंस है, मतलब फायर इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है, फिर और कुछ अलग टाइप का प्रॉपर्टी का रिलेटेड कुछ इंश्योरेंस रहेंगे, वो जो सारे इंश्योरेंस रहेंगे वो अंडर आते हैं जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में इट इज इंश्योर्ड ओनली फॉर योर लाइफ। ओके, so what is mean by insurance? It is a creation of some security or monetary protection against any possible loss or damage. This loss due to the minimized by the insurance. So you have to remember these points very clearly about the insurance and annuity, and you have to remember some terms also, that the value of certain property is called as a property value, then the value of property insured is called a policy value, and the amount paid to a company is called a premium. ओके, सो प्रीमियम हमेशा, ये बात ये भी आपको याद रखना है, प्रीमियम जो रहता है इंश्योरेंस का वो हमेशा पॉलिसी वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, नॉट ऑन द प्रॉपर्टी वैल्यू। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, जो प्रीमियम का जो कैलकुलेशन होता है वो प्रॉपर्टी वैल्यू पे किया जाता है। प्रॉपर्टी वैल्यू मतलब क्या होता है, जो फॉर एग्जांपल एक आपका घर है तो उसकी वैल्यू 5 लाख है, तो उसके अगेंस्ट जो आपने पॉलिसी निकाली है, फॉर एग्जांपल 5 लाख का आपका घर है और आपने 4 लाख की उसका इंश्योरेंस निकाला है, तो जो प्रीमियम आप पे करते हो वो 4 लाख के अगेंस्ट, वो जो पॉलिसी वैल्यू होती है उसके अगेंस्ट आप प्रीमियम पे करते हो। So premium is always calculated on the total policy value, or we can say the policy value, not on the property value. So you have to remember this point also. Then annuity. So what is mean by annuity? The annuity is a sequence of equal payments made at the regular interval of time with the compound interest on the payment. So what types of annuities are there? What types of annuities? That is the payment of life insurance premium, the payment of a housing loan, a vehicle loan. These all categories are comes under the annuity. Okay, so there are few types of annuity. So these are all important questions that you need to remember for the MCQs. Okay, so annuities कौन से annuity certain है, annuity contingent है, classes of annuity certain है, annuity due मतलब annuity immediate, मतलब जब पेमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड करते हैं दैट इज कॉल्ड एज annuity immediate, जब
payment at the beginning of the period karte hain, that is called as annuity due. See, these all types of annuities, the terms you need to remember in order to solve the MCQs based on these chapters. क्वेश्चंस इसके बहुत इजी रहते हैं, सॉल्विंग बहुत इजी रहते हैं, स्टेप्स कम रहते हैं, कैलकुलेशंस कम रहते हैं, इसलिए इनके प्रॉब्लम्स इजीली आ जाते हैं सॉल्विंग करने के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो आती है वो है एमसीक्यू। सो उसके लिए आपको ईच एंड एवरी सेंटेंस जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो दीज ऑल अबाउट द एन्युटी। ओके, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक now we are going to talk about is the linear regression. Now what is mean by linear regression? So in order to study the concept of linear regression, you need to understand what is mean by correlation. So correlation का मतलब क्या होता है? What is mean by correlation? When there exists a relationship between two variables, then it is called as a correlation. Means the change in value of the one variable resulting into the change in value of the another variable, then we can say that the two variables are correlated with each other. Okay, so correlation and regression, these two are interconnected with each other. Okay, तो क्या फर्क है कोरिलेशन और रिग्रेशन? कोरिलेशन में जब हम रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं कोरिलेशन में, और इट इज अबाउट ओनली द डेटा विच इज गिवन टू यू इन अ प्रॉब्लम और विच इज अवेलेबल विथ यू। मतलब कोरिलेशन में जब रिलेशन डिस्कस करते हैं तब हमारे पास जब डिस्कशन होता है तो वो जो अवेलेबल डेटा आपको दिया है जो आपके पास है उतना ही उसके ऊपर ही आप कर सकते हो। लेकिन रिग्रेशन में उन्होंने वो डिसएडवांटेजेस को ओवरकम किया है। मतलब क्या क्या है कि दिए हुए डेटा से जब आप फ्यूचर डेटा और फ्यूचर वैल्यू जब प्रेडिक्ट करते हो उसके लिए लीनियर रिग्रेशन का यूज होता है। तो लीनियर रिग्रेशन मतलब प्रेडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ वन स्पेसिफिक variables being predicted is called a response or the dependent variable. So जो लीनियर रिग्रेशन में होता है कि जो अवेलेबल डेटा है उस अवेलेबल डेटा से जब प्रेडिक्टेड आप करते हो फ्यूचर वैल्यू जब आप प्रेडिक्ट करते हो तो उसको हम कहते हैं लीनियर रिग्रेशन। तो इसमें दो टाइप के रिग्रेशन होते हैं, द लाइन ऑफ रिग्रेशन y on x एंड द लाइन ऑफ रिग्रेशन x on y। तो रिग्रेशन y on x का मतलब क्या होता है? जब x की वैल्यू दी है और y की वैल्यू हमें प्रेडिक्ट करनी है, दैट इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ रिग्रेशन y on x। एंड द लाइन ऑफ रिग्रेशन x on y मींस अगर y की वैल्यू दी है, x की वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है, दैट इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ रिग्रेशन x on y। ओके, सो देयर आर फ्यू formulas which are based on the linear regression। अभी जब भी आप रिग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट हैव टू फाइंड द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। नाउ व्हाट आर द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स? The regression coefficient, that is byx and bxy. Without regression coefficient you cannot find any value regarding the part regression. So the standard equation of line of regression y on x is y minus y bar is equal to byx into the bracket x minus x bar. And there are few formulas are there which is used to find the regression coefficient. So if you observe the formulas, there are 5 formulas to calculate the regression coefficient. So that means what? The data which is available with you in the problem, according to that you have to change or we can say you have to switch the formula in order to find the regression coefficient. So जैसे आपको डेटा दिया रहता है उस हिसाब से आपको फॉर्मूला चेंज करना वहां पे जरूर होता है। सो यही M2 में सबसे ज्यादा नेसेसरी है। ओके, सो दिस इज अबाउट लाइन ऑफ रिग्रेशन y on x। सिमिलरली जैसे लाइन ऑफ रिग्रेशन x on y रहता है। ओके, सो x minus x bar is equal to bxy into the bracket y minus y bar। उसके हिसाब से अगेन you have to find the regression coefficient bxy
Again, you have to use the different formulas according to the data which is given to us in the problem. So so these are about the line of regression, x on y and y on x. Then very important part, that is a correlation coefficient between two variables x and y. The formula says r is equal to plus minus under root byx into bxy. So what is this formula says? Now बाहर प्लस माइनस दिया है अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई. अभी इसको एक सिंपल ट्रिक है याद रखने की. जब भी आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करते हो डी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, मतलब अगर मुझे आर की वैल्यू क्वेश्चन में पूछी है तो मुझे पता है कि मुझे दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स निकालने हैं, बी वाई एक्स भी निकालना है, बी एक्स वाई भी निकालना है. लेकिन एक छोटी सी सिंपल ट्रिक आप याद रख सकते हो. आइदर दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स दैट इज bxy एंड byx दोनों अगर आइदर पॉजिटिव आते हैं या दोनों निगेटिव आते हैं. ओके, दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आइदर दोनों पॉजिटिव आएंगे और आइदर दोनों निगेटिव आएंगे. अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब याद रखना है कि आपने गलत सॉल्व किया है या कैलकुलेशन में आपकी मिस्टेक हुई है. तो आइदर दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव, यू हैव टू रिमेंबर. ओके, अभी जब भी आप स्क्वायर रूट निकालते हो, अभी वापस एक बार यहाँ पे मैंने जब स्क्वायर रूट की बात मेंशन की है तो एक बार बता देता हूँ. अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट आ रहा है that is square root of 36 आएगा, square root of 0.36, then you can find it out as 0.6 or 6, whatever it is. But if it is a square root of 1.3722, then just keep this value as it is in the square root and write either plus or either minus depending on the signs of the regression coefficient. इसका मतलब अगर दोनों regression coefficients पॉजिटिव है तो स्क्वायर रूट के बाहर साइन लगानी है आपको पॉजिटिव और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है that is both byx and bxy are positive. अगर दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आपके निगेटिव है तो स्क्वायर रूट के बाहर साइन निकालो, लिखो निगेटिव साइन और लिखो रीजन byx and bxy both नेगेटिव है. अगर आप ये रीजन ब्रैकेट में नहीं लिखते हो then you will lose your half marks for that. Okay, so please remember that you have to write a reason for the regression coefficients, the signs of the regression coefficient की दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव. और बाहर जो अगर दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव रहेंगे तो बाहर पॉजिटिव साइन डालो, अगर दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट निगेटिव है तो बाहर साइन निगेटिव. So this is all about the regression analysis. Then index numbers. So there are types of index numbers, that is price index number, quantity index numbers and the value index number. So इस टॉपिक में आपको नोटेशंस याद रखना बहुत जरूरी है. व्हाट इज मीन बाय P0, व्हाट इज मीन बाय P1, व्हाट इज मीन बाय Q0, व्हाट इज मीन बाय Q1, व्हाट इज मीन बाय P01, that is the price index number of the current year with respect to what base year. What is P1, the price of the current year. What is the value of Q0? Q0 means क्या है, the quantity of the commodity in the base year. P1 मतलब quantity, price of a commodity in a base year, whatever it is. Okay, then the price index number says the price index numbers measures the change in the level of prices in the economy. It compares the price of the current year with that of the base year that indicates the relative variation. अभी ये इंडेक्स नंबर्स का कैलकुलेशंस कैसे होते हैं? अभी फॉर इंडेक्स नंबर्स के कैलकुलेशन के लिए आपको एक चीज डिवीजन आना चाहिए प्रॉपरली. सो लैस्परेस प्राइस इंडेक्स नंबर है, पास्चर्स प्राइस इंडेक्स नंबर है, फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर है, ड्रॉबिश बाउली है, फिर मार्शल एजवर्थ एंड वॉलशैक प्राइस इंडेक्स नंबर. देयर आर टोटल 6 प्राइस इंडेक्स नंबर and this problem will become for 4 marks. Okay, you have to prepare that table and you have to find the price index number whatever they have asked. ये problem definitely 4 marks के लिए आने वाला है आपका. लैस्परेस या पास्चेस या फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर जो भी कुछ पूछा गया है आपको अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला यू हैव टू फाइंड इट आउट. लेकिन ये प्रॉब्लम डेफिनेटली एग्जाम में आएगा ही आएगा. आप इसको थरोली इस चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हो. इसका एक प्रॉब्लम
टेबल वाला लैस्परस प्राइस इंडेक्स पास्चेज निकालने के लिए वो पूछा जा सकता है 4 मार्क्स के लिए। ये बहुत ही ईजी है, जस्ट आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना है और फॉर्मूलाज में सब्स्टिट्यूट करना है। So this is all about the topic index numbers. So I think I have explained enough for this session, and we will try to keep more sessions for all my dear students. If you have any queries, then you can ask in a chat box.